Hello everyone, let's say MCQs on Drugs and Cosmetics Act 1940 and rules there under 1945. We will see in this video MCQs on specifically on schedules to the Act and schedules to the rules. So let's start with the first MCQ. Which schedule to dash prescribes the list of books specified in Ayurvedic, Siddha or Unani system of medicines? हमें दो ऑप्शंस चूज करने, वन ऑप्शन जिसमें दो सब ऑप्शन है वो चूज करने हैं। इनमें से कौन सा शेड्यूल एक्ट या रूल्स को प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें क्या है, द लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि शेड्यूल फर्स्ट है या सेकंड है, और उसके बाद ये भी डिसाइड करना है ये शेड्यूल टू द एक्ट है या शेड्यूल टू द रूल्स है। सो लेट मी क्लियर, शेड्यूल्स टू द एक्ट सिर्फ दो है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब यहाँ का एक ऑप्शन क्लियर हो गया, ये शेड्यूल्स टू द एक्ट है, रूल्स नहीं है। शेड्यूल्स टू द रूल्स कितने हैं? लगभग 23 to 25 है, फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल ए टू अल्फ़ाबेटिकल वाई, ये बहुत ज़्यादा है। शेड्यूल्स टू द एक्ट कितने हैं? दो है। वो दो कौन से हैं? एक फर्स्ट और दूसरा सेकेंड। सो अब हमें ये तय करना है, ये दो ऑप्शन बचे, ये तो फेल हो गए। सो इन दोनों में से कौन सा ये हमें सिलेक्ट करना है। सो शेड्यूल फर्स्ट क्या है और शेड्यूल सेकंड क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। सो शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल टू द एक्ट है, दैट इज द लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एंड सेकेंड शेड्यूल टू द एक्ट है स्टैंडर्ड्स टू बी कॉम्प्लाइड बाय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। So the correct answer is first schedule to the act prescribes the list of books specified in ASU, that is Ayurvedic, Siddha or Unani medicines. Next question is dash which schedule prescribes standards to be complied with by imported drugs manufactured for sale or sold or stocked drugs. So ये कौन सा शेड्यूल बताता है? It is second schedule, जो कि schedule to the act है। Now the third is which schedule of the drugs and cosmetics rules 1945 provides the list of poisonous substances under ASU drugs. So ऐसा कौन सा शेड्यूल है कि जो poisonous substances under आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स जो शेड्यूल बताता है, ये शेड्यूल हमें कौन सा है बताना है। So Schedule F and F1, these are, F is related to the processing of blood components, F1 is related to the vaccine, sera, antigens, diagnostic agent, etc. Schedule E is nothing but the list of poisonous substances, and Schedule E1 is for the Ayurvedic, Siddha and Unani substances. So the correct answer is option 1. Now next is which schedule of the drugs and cosmetics rules 1945 provides standards for cosmetics? So already we have abbreviation, or we have seen in the video, that is the mnemonics for the remembrance of the schedule. Schedule S, we remember it by SSC, that is the secondary examination जिसे हम 10वीं कक्षा कहते हैं, SSC. So S for schedule S for standards and C for cosmetics. So Schedule S is the standards for cosmetics. Schedule J, that is we remember it by JD, that is the list of diseases. Schedule I, that is the IC, that is the calculation of proportion of poison. Schedule R for rubber, which is used to make the condom. So these are incorrect. Correct is the Schedule S. Next question is the first schedule to the Drugs and Cosmetics Act 1940 prescribe. शेड्यूल टू द एक्ट पूछा गया है, ये क्या बताता है, क्या देता है? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ये है शेड्यूल एस। स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ये है शेड्यूल M3, नॉट M3, R1। Authoritative books of Ayurvedic, Siddha, Unani system, this is the first schedule to the act. Standard of drugs to be complied with by imported drugs, this is the second schedule of drugs. So the correct answer is first schedule क्या देता है हमें? List of Ayurvedic, Siddha and Unani system books, ये first schedule में दिए गए हैं। Now the next is requirement of factory premises for the manufacture of cosmetics are mentioned in Drugs and Cosmetic Rules 1945 under schedule.
सो क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक कौन से शेड्यूल में दिए गए हैं? शेड्यूल M. If it is plainly schedule M, then it is for the factory premises for manufacture of drugs. If it is M1, then अब हमने न्यूमोनिक्स में देखे हैं M1, that is MH1 महाराष्ट्र नंबर 1, जो मैंने अपने अपने स्टेट के लिए हम बनवा सकते हैं. राइट नाउ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सो आई हैव प्रिपेयर्ड MH1, H फॉर होम्योपैथी. M2 MC2, दैट इज MC स्क्वायर हमने देखा है, मास इंटू चार्ज रहता है. ये निमोनिक हमने वीडियो में अलग से डिस्कस किया है. और M3 इट इज मेडिकल डिवाइस. सो द करेक्ट आंसर इज M2, जिसे हम याद कैसे रखते हैं, MC स्क्वायर. शेड्यूल M और शेड्यूल M, MC, C फॉर कॉस्मेटिक्स एंड स्क्वायर का ये दो बताएंगे हम. सो ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ cosmetics. Next question. Schedule F to the drugs and cosmetic rules 1945 prescribes the requirement on for the functioning and operation of blood bank, standard for surgical dressings, list of drugs to be prescribed and standards for disinfectant fluids. So हमने देखा है शेड्यूल F का सीरीज हमने निमोनिक्स ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है. शेड्यूल F का हम याद रखते हैं FB, B फॉर ब्लड, B फॉर FB फेसबुक, जैसे हम याद रखते हैं FB, B फॉर ब्लड. सो द करेक्ट आंसर इज द रिक्वायरमेंट फॉर फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक, दैट इज अ ब्लड बैंक प्रोसेसिंग एंड लाइसेंसिंग टू प्रोसेस द ब्लड बैंक कंपोनेंट्स. स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स ये आता है F2 शेड्यूल, जिसमें हमने रखा है F1 किसके लिए हम रखते हैं, वादा. FB पे मिले, फ्रेंडशिप हुई, F1 में वादा किया, दैट इज एप्लीकेबल फॉर वैक्सीन एंटीसेरा डायग्नोस्टिक एजेंट. F2 थोड़ा सा क्लैशेस आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग रखा हमने. सो SSD, S फॉर स्टैंडर्ड्स, S फॉर सोशल, D फॉर डिस्टेंस, ऐसे हम याद रखते हैं. सेकेंड शेड्यूल F2, दैट इज द स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स. लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड ये रहेगा शेड्यूल L में. स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड ये है शेड्यूल O. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी ड्रग मैन्युफैक्चरर शैल मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 एज पर. सो कौन से शेड्यूल में मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं? शेड्यूल M में तो कुछ नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट बताता है. शेड्यूल V इट इज फॉर VIP, दैट इज द पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स. शेड्यूल T it is the supplementary schedule of schedule M, that is the factory premises requirement for Ayurvedic preparations. So ये बचता है शेड्यूल U for particulars. So ये बताता है हमें मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स टू द ड्रग्स रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल F to the drugs and cosmetic rules 1945 contains the list of drug which can be marketed under generic name only, ये रहा शेड्यूल W. ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग ये रहा शेड्यूल X. स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ड्रग्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग ये रहा शेड्यूल D. हम शेड्यूल K हम याद रखते हैं DK. D is for exemption from import and K is exemption from manufacturing. So the correct answer is F. दो F है, ये दो आंखें हैं, आंखों का preparation, that is the ophthalmic preparations. Next is list of Ayurvedic poisons is related to schedule. Ayurvedic poisons पहले भी हमने MCQ अटेंड किया है, it is schedule E1. Next, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट आर लेड डाउन इन शेड्यूल. सो हम याद रखते हैं ना VIP और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, दैट इज शेड्यूल V. सो द करेक्ट आंसर इज शेड्यूल V. इट गिव्स द स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल P इज रिलेटेड टू P फॉर पीरियड, P फॉर पैक साइज, P फॉर लाइफ पीरियड. सो ये क्या है, टॉयलेट प्रिपरेशंस, लाइफ पीरियड. सो करेक्ट आंसर इज द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स. इसके बारे में शेड्यूल P है. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसीज गिवन इन विच शेड्यूल. So this is the schedule of my alphabetical name, that is the schedule N. So that's why I always remember. So एक ट्रिक है आपके लिए कि जो आपका नाम का इनिशियल है, जो लेटर है, वो शेड्यूल तो हमें
आंखें बंद करें तब भी याद रहना चाहिए, और इस वजह से शेड्यूल एन मुझे हमेशा याद रहता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, शेड्यूल एन, efficient running pharmacy. Next is standards for mechanical contraceptives are given in. Mechanical contraceptives means condoms. So which schedule is containing the standards for condom? So it is S is for cosmetics, Q is list of colors, W is generic drug marketing, so R is R for rubber, and rubber is used in making condoms. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम एज पर. अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे कौन से ड्रग है कि जो जेनेरिक नेम से मार्केट किए जाते हैं, दैट इज द शेड्यूल डब्ल्यू. शेड्यूल वाई इज फॉर न्यू ड्रग, एक्स इज नार्कोटिक साइकोट्रोपिक, ई इज पॉइजनस. नेक्स्ट इज जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स गिवन इन. कौन से शेड्यूल में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस दिए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए? सो ये दिए है शेड्यूल एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कम अंडर. सो अभी हमने बोला क्यू, क्यू फॉर कलर, सो द करेक्ट आंसर इज शेड्यूल क्यू. नेक्स्ट इज which schedule gives list of forms used for making application, for issuing license, granting license, sending memorandum. So हमने याद किया है A for apple, A for application. So that is the schedule A, जो कि हमें forms की list बताता है. Next is what is schedule C? C हम C करके भी प्रोनाउंस करेंगे. जो मरीन ड्रग्स रहते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, इसलिए हम याद रख सकते हैं इट इज बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स. स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स S में आते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस R1 में आते हैं, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग P में आता है. दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज शेड्यूल डी कंटेन्स लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड ड्रग्स. अभी हमने डिस्कस किया है डी के, शेड्यूल डी के, डी एंड के बोथ आर एग्जेम्प्टेड ड्रग्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू. अगर डी है तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग, अगर के है तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग. सो इंपोर्ट ऑफ ड्रग डी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग शेड्यूल के. Next question. Schedule K contains list of exempted drugs which are exempted from certain provisions applicable to manufacture. हमने याद ऐसे ही रखा है, डी के दिनेश कार्तिक करके हम याद रखते हैं, और डी पहले आता है, के बाद में आता है, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर में आई पहले आता है. सो जो पहले आता है वो पहले को देंगे, डी पहले है तो आई, इंपोर्ट पहले, के बाद में तो मैन्युफैक्चर का एम भी बाद में. सो द करेक्ट आंसर इज मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स. अदरवाइज डी और के का मैटर सेम है, खाली एप्लीकेबल टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर ये डिफरेंसेस है. नेक्स्ट, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट इज गिवन इन विच शेड्यूल. सो पहले हम एप्लीकेशन करते हैं शेड्यूल ए में, और शेड्यूल बी में हम क्या करते हैं, फीस भरते हैं, जो भी फीस है वो पे करते हैं. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. शेड्यूल F2 प्रिस्क्राइब्स. तो हमने कैसे याद रखा है पूरा शेड्यूल F का सीरीज, FB फेसबुक, दैट इज FB. B फॉर ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट एंड लाइसेंसिंग टू प्रोसेस ब्लड कंपोनेंट. हमने F1 कैसे याद रखा है, वादा, दैट इज प्रोविजन एप्लीकेबल टू वी, वादा वैक्सीन एंटीसेरा डायग्नोस्टिक एजेंट. F2 कैसे याद रखा है हमने, SSD, दैट इज द, थोड़े क्लैशेस हो गए, वादा किया, फ्रेंडशिप किया, वादा किया मतलब और भी रिलेशंस स्ट्रांग हो गए. अब थोड़ा कन्फ्लिक्ट आया, थोड़ा झगड़ा हो गया, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं. सो SSD का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड्स, S फॉर स्टैंडर्ड्स. हमने SD कैसे याद रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि अभी फिलहाल चल रहा है कोरोना के टाइम में. सो SD हियर सर्जिकल ड्रेसिंग. ये F2 है. अब इतना बढ़ गया है खिंचाई, इतना तान तनाव बढ़ गया है कि F3 क्या हो गया, सुट. सुट का मतलब है, ये एक मराठी वर्ड है, सुट मतलब चल फुट, अब निकल जा मेरे लाइफ से. सो पहले मिले फेसबुक पे, फ्रेंडशिप हो गई, क्लोज आ गए, फिर डिस्टेंस आया और फिर ब्रेकअप हुआ. सो थर्ड क्या है, F3 SUT, दैट इज द स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स. ये है शेड्यूल F3. ये है शेड्यूल R, जिसका F से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये है शेड्यूल FF. सो करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, SSD. ओके, नेक्स्ट इज शेड्यूल F3 प्रिस्क्राइब्स. अभी हमने बताया सुट.
स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टिप्स, चले जाओ, दैट इज SUT. Okay, that was about the schedule F3. Next question. Provisions applicable to vaccines, antisera and diagnostic antigens are included in schedule. So which schedule is applicable? So we have already seen, these are the options. So schedule F, FB Facebook, F1 WADA, V for vaccine, A for antisera, D for DA for diagnostic agent, and I have trick to remember WADA for F1. So the correct answer is schedule F1. Next question is, list of substances required to be taken only under supervision of RMP comes under following schedule. So which schedule says that prescription drugs, list of substances required to be taken only under supervision of RMP. So RMP, that is the registered medical practitioner, जिसे हम respectfully क्या कहते हैं, G. So ये schedule कौन सा है, G. ये हमें mnemonics already पता है, हमने वीडियो में देखे हैं. So next is the calculation of proportion of poisons in certain cases was given in schedule. So हमने ये निमोनिक याद रखा है, ICP, that is schedule I, C for calculation and P for poison. So which schedule is applicable? Schedule I. E is poisonous substances, list of poisonous substances. E1 is Ayurvedic, Siddha, Unani poisonous substances. Schedule X is the narcotic and psychotropic substances. Next is requirement of factory premises, plant, equipments, etc. for the manufacture of homeopathic drugs falls under schedule. So it is clear that in the mnemonics video, mnemonics for schedule video, just I have explained, as I am from my state Maharashtra, I said MH1. So M for schedule M, 1 for M1, H for homeopathic. So you can remember your trick. So correct is the M1 schedule. Next is schedule dash. Which schedule is the list of diseases and ailments which a drug may not claim to prevent or cure. So हमने निमोनिक याद रखा है, इसके लिए JD और DJ. So क्या है, JD, J for schedule J, and D for diseases and ailments which a drug may not claim to prevent or cure. मतलब इस schedule में ऐसे drugs दिए हैं, ऐसे डिसीजेस दिए हैं, ऐसे एलिमेंट्स दिए हैं कि जो कोई भी ड्रग क्योर या क्लेम करने का दावा नहीं कर सकता. सो नेक्स्ट इज शेड्यूल एम गिव्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट, इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ. हमने इसके लिए याद रखा है MD, हमने ये तय किया है MD, M मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है. सो यहाँ पे शेड्यूल MD का M और D ड्रग्स के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ड्रग्स. Prescription drugs which are required to be sold by retail only on prescription of RMP are enlisted in schedule. So ये हमने याद रखने के लिए क्या सोचा है, HP, that is Hindustan Petroleum. So H for schedule H and P for prescription drugs which are required to be sold by retail. Next question is schedule R1 prescribes. So स्टैंडर्ड्स फॉर कंडोम्स, फॉर अम्बिलिकल टेप्स, फॉर मेडिकल डिवाइसेस. सो हमने ये कैसे याद रखा है, शेड्यूल R1 MD ऐसे याद रखा है. MD दैट इज फॉर माधुरी दीक्षित एंड R1 हमने रखा है R रणवीर सिंह के लिए हमने R चूज किया था. सो ऐसे हम याद रखेंगे स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज requirement of factory premises, plant, equipments, etc. for the manufacture of medical devices. So हमने कैसे याद रखा था, MD that is schedule M only for drug, M1 MH1 रखा था, that is M for schedule M, H for homeopathic, 1 for M1 schedule. M2 हमने याद रखा था MC स्क्वायर करके. So स्क्वायर का 2 है वो 2 से रहेगा. M for schedule M. So M2 schedule में C का मतलब है standards for cosmetics. So M3 जो है वो अगर उल्टा करें हम तो मेडिकल डिवाइस जैसे दिखता है. सो इसीलिए हमने क्या याद रखा था, M3 इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मेडिकल डिवाइसेस. तो यहाँ पे तो M3 नहीं है, M2 है कॉस्मेटिक्स के लिए, R1 है मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स के लिए है.
M1 है होम्योपैथिक ड्रग्स की रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। R1 क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस है, दैट्स व्हाई नन ऑफ द अबव। एक्चुअली आंसर क्या है, शेड्यूल M3 होना चाहिए। नेक्स्ट इज शेड्यूल ओ प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर, ये जो ओ प्रोनाउंस होता है वो क्या रहता है, डेटॉल, सेवलॉन, ओ रहता है इसमें। सो ये डेटॉल सेवलॉन क्या है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स है। सो करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। शेड्यूल, विच शेड्यूल प्रिस्क्राइब्स पैक साइज ऑफ ड्रग। सो एक पी है, पहला पी फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, दूसरा P1 है वो पैक साइज ऑफ ड्रग्स। ये इजी है याद रखने के लिए। नेक्स्ट वन, शेड्यूल आर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट, मेड अप ऑफ रबर लैटेक्स। तो इसका हमने याद कैसे रखा है, शेड्यूल आर जो है वो इट इज मेड अप ऑफ आर फॉर रबर एंड रबर लैटेक्स कहते हैं इसे हम, विच इज यूज्ड टू मेक, रबर लैटेक्स किसके लिए यूज किया जाता है बनाने के लिए, कंडोम्स। सो करेक्ट आंसर इज कंडोम्स। ओके, नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस हाइजीनिक कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। तो इसके लिए हमने M सीरीज का एक सप्लीमेंट क्या है, MT। तो शेड्यूल M से कनेक्टेड शेड्यूल कौन है, T, जिसमें क्या है, सभी रिक्वायरमेंट्स दी गई है एज रिक्वायर्ड फॉर द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी। तो यहाँ पे तो कहीं भी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी का शेड्यूल T नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नन ऑफ द अबव, द करेक्ट आंसर इज शेड्यूल T। ओके, what does schedule U prescribes regarding particulars to be shown in? U for particular, particular का U रहता है और ये भी U रहता है, so इसलिए हम याद रखते हैं। अब शेड्यूल U है particulars to be shown while manufacturing and analytical records of drugs, okay। और शेड्यूल U1 क्या है, just manufacturing records of cosmetics। so ये है करेक्ट आंसर, यू है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। अगर हम U1 की बात करें तो ये है कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल V प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स VIP, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। और इसमें और क्या आता है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स कंटेनिंग विटामिन। सो करेक्ट ऑप्शन ये दोनों है, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट डज शेड्यूल U1 प्रिस्क्राइब्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन। तो अभी हमने डिस्कस किया, U है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग है, U1 है ओनली मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। ओके, ये डिफरेंस हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक एंड अदर सच ड्रग्स गिवन इन शेड्यूल। सो हमने न्यूमोनिक्स के वीडियो में देखा है डेंजर का ये जो क्रॉस रहता है, ये क्रॉस क्या है, शेड्यूल X है। सो इट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक एंड अदर सच ड्रग्स। नेक्स्ट इज शेड्यूल Y गिव्स रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर। तो इसके लिए हमने निमोनिक क्या याद रखा है, Y क्या देता है हमें, GR ऑन CT फॉर न्यू ड्रग है ना, GR दैट इज guidelines and requirement on CT that is the clinical trials for import and manufacture of new drug, okay। so that is GRCT on mind, M for manufacturing, I for import, N for new, D for drug, mind हमने थोड़ा उल्टा सुल्टा किया है, MIND। सो GRCT on mind। आप डिटेल्स के लिए न्यूमोनिक्स का वीडियो देख सकते हैं। सो ये रहे शेड्यूल्स, हमने इस वीडियो में देखे हैं शेड्यूल्स टू द रूल्स के MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम देखेंगे MCQs ऑन डेफिनेशंस अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। थैंक यू सो मच।